Good afternoon, students. In previous video, we have discussed about the circulation process. In that video, I have told you about the components of the circulatory system. What are the organs that are involved in circulatory system? So in previous video, we have discussed about the blood vessels. We have discussed about the medium as well, about blood. And the main organ of the circulatory system is the heart. So here we are going to discuss about the human heart. So first of all, when we are talking about the heart, so what is the location of the heart? We all are aware it is present little bit at the left side of the chest cavity. And what is the structure of the heart, or what is the, you can say, size of the heart? So a heart is equivalent to a wrist of the human. आपकी जितनी बड़ी wrist होती है उसके size का आपका heart होता है. तो first of all we will see that what is the structure of the heart. So when we will discuss about the heart, human heart is made up of 4 chambers. So heart consists of 4 chambers. Among them, 2 are auricles that are also known as atrium, and 2 are ventricles. So it consists of 4 chambers. 4 chambers से मिलकर heart बना होता है. 2 atrium होते हैं उसमें और 2 क्या होते हैं? Ventricles होते हैं. So here I am going to draw the diagram of the heart first, so that you will be clear about all the parts of the heart. So when we are talking about the structure of the structure of the heart is of pear shaped. I am going to draw the easy diagram of the heart. You can follow this diagram as well, or you can follow the diagram that is mentioned in the book. It's your choice which diagram you want. You can make your own diagram as well, or if you want to draw this diagram you can draw that one as well. So here I have told you that human heart is of 4 chambers structure. 4 chambers are found in human heart, 2 atrium as well as 2 ventricle found. And in previous video I have told you that at the left side of the heart always pure blood flow, and at the right side impure blood flow. So here we will consider this side is the left side and that one is the right side. So let's see what are the 4 chambers of the heart and where are these chambers. It is the first chamber, second chamber, third chamber and fourth chamber. So I am going to give the name of these chamber. So this chamber is the, because it is present at the left side of the heart, so we are giving the name left atrium. So it is the left atrium. This is left ventricle. Left ventricle. This one is the right atrium. Right atrium, and that one is the right ventricle. Right ventricle. So here heart is divided into 4 chambers. 2 chambers are present at the left side of the heart where the pure blood flow, and 2 chambers are present at the right side of the heart where is impure blood is going to flow. So these are the 4 chambers of the heart. Now you can see here I have made a separation. It is the separation that I have made here. That separation is present inside the heart that separate the left side from the right side. So this separation is known as septum. इसको हमने क्या बोल दिया? सेप्टम बोल दिया है, जो राइट साइड को लेफ्ट साइड से सेपरेट किए हैं हार्ट को.
अब यहाँ पे स्पेसिफिक काइंड के वॉल प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर। लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है, देयर इज द वॉल। इस वॉल को हम कहेंगे बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। इनका फंक्शन क्या है बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी केवल आपको देखना है क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, उस वॉल्व को हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। और देयर इज वन मोर नेम ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व, दैट इज द मिट्रल वॉल्व, MITRAL, mitral valve. And at the right side of the heart, between the right atrium and right ventricle, there is one more valve present, that is known as tricuspid valve. This valve is known as tricuspid valve. So you can see here, between the left atrium and left ventricle, there is bicuspid valve formed, and between the right atrium and right ventricle, tricuspid valve formed. इन सब का फंक्शन क्या है, डेट वी विल डिस्कस लेटर। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ा सा मैंने ब्लड वेसल बनाया हुआ है, जिसकी जो ओपनिंग है वो किधर है, लेफ्ट साइड में है। इस ब्लड वेसल्स की ओपनिंग मैंने कहाँ बनाई है, लेफ्ट साइड में बनाई है। ध्यान रखना बेटा, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी डेट अराइज फ्रॉम द हार्ट। और मैंने आपको बताया है आर्टरीज ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड एंड वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। तो ये लार्जेस्ट आर्टरी है आपका, जो आपका हार्ट से अराइज होती है, एंड दिस आर्टरी इज नोन एज अयोर्टा। इस आर्टरी को क्या नाम दे दिया, अयोर्टा। इसी तरह से यहाँ जो आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं राइट साइड में, दीज आर द लार्जेस्ट वेन्स डेट अराइज फ्रॉम द हार्ट। और वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो होगा, इम्प्योर, इसीलिए ये कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है। तो ये जो है वेन, इनको कहते हैं वीना कैवा। और वीना कैवा मैंने दो दिखाई है, एक लोअर साइड और एक अपर साइड। कंफ्यूज मत होना, यहाँ 3D स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है। ये जो आपका लोअर वीना कैवा है, इसकी भी ओपनिंग कहाँ खुलती है, आके ऑरिकल में खुलती है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वीना कैवा, इट इज सुपीरियर वीना कैवा, एंड एट द below side it is inferior vena cava, inferior vena cava, superior vena cava and inferior vena cava। अब यहाँ एक और चीज देखना है, इधर आपको दो ट्यूब्स और नजर आ रही हैं। ये जो ट्यूब्स है ये क्या है, ये आपका आर्टरीज और वेन्स हैं जो लंग्स को कनेक्ट रखती हैं हार्ट से, जिसकी हमने पहले भी बात की है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, pulmonary artery, and this one is the pulmonary vein। स्पेस नहीं है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, pulmonary vein, जो आपके लंग्स को हार्ट से कनेक्टेड रखती है। और मैंने आपको बताया था पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन होते हैं। इन ऑल आर्टरीज ऑलवेज प्योर ब्लड फ्लो एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी वेयर इम्प्योर ब्लड फ्लो। इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड रहती है आपके राइट साइड ऑफ हार्ट से, और पल्मोनरी वेन आपके कनेक्टेड रहेगी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, बिकॉज इन पल्मोनरी वेन ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड और यू कैन से प्योर ब्लड फ्लो। तो इट इज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब हमें देखना है कि ये हार्ट में किस तरह से ब्लड फ्लो होता है, कहाँ से ब्लड आता है, पंपिंग कैसे होती है, दैट इज नोन एज द पंपिंग ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको बता रही हूँ, डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बाद फ्लो ऑफ आप ब्लड देखेंगे कैसे कैसे आ रहा है। उसके लिए बेटा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम भी पता होना चाहिए, एग्जैक्टली किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ स्पेस कम है, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको आइडिया दे रही हूँ, बाद में यहाँ लेबलिंग कर दूंगी मैं फिर से। आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, सपोज दीज आर द लंग्स, और चेस्ट कैविटी में है, लेफ्ट साइड हल्का सा टिल्ट होता हुआ आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक इट।
heart consists of 4 chambers. Suppose these are the 4 chamber of the heart. लंग से आपके स्पेसिफिक काइंड के आर्टरी और वेन अराइज हो रहे होते हैं, जो किसको कनेक्ट करते हैं, हार्ट को कनेक्ट करते हैं, जो ऑरिकल से कनेक्टेड रहते हैं, जो मैंने यहाँ बनाए हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन. तो सपोज इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस वन इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, पल्मोनरी वेन डेट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आपका प्योर ब्लड कैरी करेगी. इधर जो है वो क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी डेट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड. फिर हार्ट फाइनली उस ब्लड को कहाँ पंप करेगा, अपने हार्ट पंप करता है डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज. तो इस तरह से ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कनेक्टेड रहता है. दीज आर द लंग्स. लंग्स आर कनेक्टेड विद द हार्ट विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, एंड हार्ट फर्दर पंप द ब्लड इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज एंड वेन. तो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था लंग्स के अंदर क्या हो रहा था, एल्वुलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. व्हाट इट मीन, प्योर ब्लड जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है, या प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है. एल्वुलाई में प्योर ब्लड कैसे फॉर्म हो रहा है, ब्लड आपका ऑक्सीजन को अपने अंदर डिफ्यूज कर रहा है, और ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड एल्वुलाई से ले लेता है वो कैसा बन जाएगा, प्योर ब्लड बन जाएगा. लंग से वो प्योर ब्लड फाइनली पल्मोनरी वेन के होते हुए कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा. बेटा अगर ध्यान दो, पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आपका कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम से फिर प्योर ब्लड बाइकस्पिड वाल्व को पास करते हुए कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा. लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर प्योर ब्लड अयोर्टा में आएगा. यहाँ पे भी स्पेसिफिक काइंड के वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिनको सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं. सेमी ल्यूनर वॉल्व आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए. अयोर्टा के पास भी स्पेसिफिक काइंड के वॉल्व होते हैं डेट आर नोन एज सेमी ल्यूनर, SEMI सेमी, LUNAR सेमी ल्यूनर वॉल्व. तो यहाँ से अयोर्टा में जाएगा प्योर ब्लड, और अयोर्टा से डिफरेंट आर्टरीज बाहर कनेक्टेड होती हैं. तो उन आर्टरीज के थ्रू कैपिलरीज में जाता है. कैपिलरीज में फिर आपका ऑक्सीजन को वहाँ प्योर ब्लड छोड़ देगा और वहाँ से क्या उठा लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेगा. अब जैसे ही ब्लड बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा वो कैसा हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा. और इम्प्योर ब्लड को और क्या बोलते हैं हम, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. तो फाइनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी टिश्यूज में प्रेजेंट है वो आपके कहाँ से आएगा, इंफीरियर और सुपीरियर वीना कैवा. ये मैंने बनाया था, सुपीरियर वीना कैवा था. तो यहाँ से आपके अंदर जाएगा. सबसे पहले बेटा याद रखना है, जो इंफीरियर और सुपीरियर वीना कैवा से जो ब्लड आएगा वो फाइनली आपके कहाँ पहुंचेगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट में. क्योंकि मैंने आपको बताया था राइट साइड कैसा ब्लड फ्लो करता है, कैरी करता है, वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है. तो सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ वीना कैवा, वो आपके राइट एट्रियम में आएगा. जस्ट लाइक इट, राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व को पास करते हुए कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है. इसकी भी ओपनिंग कहाँ होती है, एट्रियम में ही होती है, पीछे की साइड से. राइट वेंट्रिकल से फिर वो ब्लड आपके यहाँ हम दिखा नहीं सकते हैं, पीछे से कनेक्शन जाता है कहाँ, आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. और वो इम्प्योर ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है, वापस लंग्स में चला जाता है. इधर देखिए फिर से आपके ब्लड कैपिलरीज से जो ब्लड आया है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो ब्लड आ रहा है, वापस कहाँ लेके आ गया उसको, वो राइट साइड में आ गया. राइट साइड से फिर राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड रहती है पल्मोनरी आर्टरी से. पल्मोनरी आर्टरी वापस इम्प्योर ब्लड को कहाँ ले जाता है, लंग्स में ले जाता है. लंग्स में फिर से क्या होगा, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड छोड़ देगा और फिर से वहाँ क्या उठा लेगा, ऑक्सीजन उठा लेगा. तो इस तरह से ये साइकिल आपकी चलती रहती है. लेफ्ट साइड से आपके प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, राइट साइड से आपके इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है. तो किस तरह से हार्ट पंप कर रहा है ये अभी मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से बताया है. अब इसी का हम फ्लो चार्ट बनाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए किस तरह से पंपिंग आपके ब्लड की हो रही है. फिर से यहाँ देख लीजिए, स्ट्रक्चर की हमने बात की थी. स्ट्रक्चर में आपको क्या ध्यान रखना है, हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर.
left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. At the left side pure blood flow, right side impure blood flow. There is a specific kind of valve present between the left and right atrium that is known as bicuspid valve, and same valve present at the right side that are known as tricuspid valve. बेटा यहाँ वॉल्व का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. क्या करते हैं, अब आपको क्या करना है, ब्लड जब आ रहा है अंदर, ठीक है, तो हमें अगर ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पंप करना है तो ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, अंदर हाई होना चाहिए. जितना ब्लड प्रेशर हाई होगा उतनी स्पीड से हम ब्लड को आगे पंप कर पाएंगे. तो ब्लड एक बार ऑरिकल से जब वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये वॉल्व आपके बंद हो जाते हैं. क्यों बंद हो जाते हैं, जिससे कि जब हार्ट आपका कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड आपका पीछे की साइड ना भागे. क्योंकि अगर पीछे की साइड ब्लड लीक करेगा तो यहाँ प्रेशर नहीं बन पाएगा, प्रेशर नहीं बन पाएगा तो उस प्रेशर से ब्लड आपका आगे फ्लो नहीं होगा. तो उस प्रेशर को जनरेट करने के लिए वेंट्रिकल में ये वॉल्व आपके क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. तो वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है. ब्लड वापस पीछे की साइड मूव ना करे उसको ये प्रिवेंट करते हैं वॉल्व्स. तो यहाँ हम फाइनली देखेंगे किस तरह से ब्लड फ्लो हो रहा है, वो हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया. नाउ आई एम गोइंग टू मेक द फ्लो चार्ट जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट.